Let us start today's topic. We were doing exercise 2.5. Question number 9 of this exercise 2.5 is, listen the statement carefully. How much is 28 kilometer less than 42.6 kilometer? कि 28 किलोमीटर 42.6 से कितना छोटा है? अगर मैं आपसे ये पूछूं कि 10 और 15 में which number is less, you will say 10 is less than 15. तो ये इससे कितना छोटा है? How much it is less than 15? तो अब आप कैसे कैलकुलेट करते हो? 10 यहाँ है आपका, 15 यहाँ है नंबर लाइन पे, तो आप ऐसे स्टेप्स में जाते हो 1 2 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5. आप 5 steps ahead मूव करते हो when you go from 10 to 15 on number line. Then you say that 10 is 5 less than 15. या आप ऐसे भी कर सकते हो, 15 में से 10 सब्ट्रैक्ट करके ये बता देते हो कि जो 15 से 10 5 लेस है. यही आप यहाँ अप्लाई कर देना. अप्लाई हियर 28 किलोमीटर इज लेस देन 42.6 बाय हाउ मच? व्हाट यू विल डू हियर? You will subtract 28 from 42.6. Solution: 42.6 minus 28. 28 किलोमीटर कंप्लीट है, 42.6 डेसिमल नंबर है. अब इसके पास डेसिमल नहीं है तो आप क्या करेंगे? यू विल अप्लाई डेसिमल हियर एंड पुट 0 आफ्टर द डेसिमल. 28.0 or 28, both are the same number. Now subtract them. 6 minus 0 6, 12 minus 8 4, 3 minus 1 3 minus 2 1. Your answer is 14.6 kilometer. Next question, question number 8. Shama and Sarla went to market to purchase some fruit. Shama bought 5 kg 300 gram apple and 3 kg 250 gram mangoes. When Sarla bought 4 kg 800 gram oranges and 4 kg 150 gram bananas. Who bought more fruit? अब आप इसका आंसर कैसे देंगे? आप दोनों के फ्रूट का टोटल करेंगे. जिसके फ्रूट का टोटल ज्यादा आएगा उसी ने ही फ्रूट ज्यादा परचेज किया है. How to solve this question? आप यहाँ शामा को मार्क कर लीजिए पहले. वेट ऑफ एप्पल परचेज्ड. शामा ने एक तो एप्पल परचेज किए हैं. वेट ऑफ एप्पल परचेज्ड इज इक्वल टू 5 kg 300 ग्राम एंड वेट ऑफ WT, इसका मीनिंग क्या है? वेट. वेट ऑफ मैंगोज परचेज्ड इज इक्वल टू 3 kg and 250 gram. Total fruit purchased ग्राम्स को ग्राम्स में ऐड कर दो और किलोग्राम को किलोग्राम में ऐड कर दो. 300 250 ऐड करोगे 0, 5 and 0 5 5. kg में कितना बनेगा? 5 and 3 8 kg. This is the fruit purchased by Shama. Let us calculate for Sarla. Sarla purchased oranges and bananas. So weight of oranges purchased is equal to 4 kg 800 gram and weight of bananas purchased is equal to 4 kg 150 gram. You are to find total fruit
टोटल मीन्स आप दोनों को प्लस कर दीजिए 800 and 150. It comes out to be 950 gram. 4 plus 4, 8 kg. Now compare these two. Food purchased by Shama is 8 kg 550 gram and food purchased by Sarla is 8 kg 950 gram. Upon comparison, you will get Sarla purchased more food. On comparison, we can say that 8 kg 950 gram is more than 8 kg 550 gram. Therefore, Sarla purchased more fruit. Class, let us start with new question. Question number 7. Let me read the statement. Dinesh went from place A to place B and from there to place C. A is 7.5 kilometer from B and B is 12.7 kilometer from C. यहाँ तक कि आपकी स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है कि दिनेश वेंट फ्रॉम ए to B, then B to C. Distance between A and B is 7.5 kilometer and distance between B and C is 12.7 kilometer. Next, Ayub went from place A to place C, place D and from there to place C. Ayub ने ये वाला रास्ता लिया है. He went from A to D and then from D to C. Distance between A and D is 9.3 kilometer and from D and C distance is 11.8 kilometer. Who traveled more distance and by how much? आपसे ये पूछा गया है कि दिनेश इस रास्ते से गया है, आयूब इस रास्ते से गया है, इन दोनों में से किसने डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल किया है और कितना ज्यादा ट्रेवल किया है. आप इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दिनेश, कितना डिस्टेंस है इसका? पहले ये ए से बी तक गया, ए बी प्लस फिर ये बी से सी तक पहुंचा. ए बी डिस्टेंस है आपका 7.5 किलोमीटर एंड बी सी डिस्टेंस इज 12.7 किलोमीटर. दोनों का टोटल, इनका इसका टोटल डिस्टेंस निकालना है. यू विल हैव टू ऐड बोथ द डिस्टेंसेस. तो आप इसे ऐसे भी ऐड कर सकते हैं 7.5 किलोमीटर 12.7 किलोमीटर. प्लस करो इन्हें, 7 and 5 12, 1 कैरी आ गया आपका यहाँ. So distance traveled by Dinesh is 20.2 kilometer. Now let us calculate the distance traveled by Ayub. Ayub किस रास्ते से गया है? He went from A to D. So first he covered the distance AD and then he covered the distance DC. You will add both the distances. AD distance is 9.3 kilometer and DC distance is 11.8 kilometer. You add them. It comes out to be 20.1 kilometer. अब आपसे पूछा गया who traveled more distance. You will compare 20.2 and 21.1. लास्ट पीरियड में आपने इन दोनों का कंपैरिजन सीखा था. Let us check it for ones place, tens place. Tens place, at tens place both are 2, both are equal. At ones place it is 0 and it is 1. Therefore 21 is greater than 20 and you also know the number 21 is greater than 20. Therefore distance traveled by Ayub is more than the distance traveled by Dinesh. One more question is asked from you. By how much he traveled more than Dinesh? How to calculate it?
On comparison, we see that 21.1 is greater than 20.2. Therefore, Ayub traveled more distance. फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया आपका कि अयूब ने डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल किया। और कितना ज्यादा किया? इन ऑर्डर टू फाइंड द डिफरेंस, कितना ज्यादा किया आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। 21.1 किलोमीटर माइनस 20.2 किलोमीटर। 1 minus 2 not possible, 1 is carry from here। 11 minus 2 9, 0 20 minus 20 आ गया आपका 0। सेकंड आंसर इज 0.9 किलोमीटर। तो आपका आंसर क्या बना? अयूब बाय 0.9 किलोमीटर। 7th class, let us start with new topic, multiplication of two decimal numbers. Till now you have learned about addition and subtraction of two decimal numbers. Now you will learn how to multiply two decimal numbers. Let us start our new exercise 2.6. 2.6 question number 1. Sixth part of this question is multiply 2.11 to 211.02 by 4. आपने इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। Let us try to simplify it. आप इसके डेसिमल को रिमूव कर दो। जब आप इसके डेसिमल को हटाते हो तो डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट्स हैं डिनोमिनेटर में 1 के बाद उतनी जीरो आ जाती हैं। जैसे यहाँ डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, आप इस डेसिमल को हटा दो, डिनोमिनेटर में 1 के साथ कितनी जीरो आएंगी? 2। इसका मतलब इन प्लेस इन डिनोमिनेटर यू विल राइट 100 in place of decimal in the numerator. Numerator से decimal हटाया और हमने इसे 100 लिख दिया। 4 can be written as 4/1। अब देखो ये क्वेश्चन जो डेसिमल्स में था वो कहाँ चला गया आपका? फ्रैक्शंस में। अब ये भी फ्रैक्शन बन गई और ये भी फ्रैक्शन। एंड हाउ टू मल्टीप्लाई दीज टू फ्रैक्शन यू नो वेरी वेल। आप न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दो, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। जब आप इन दोनों डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करोगे 100 into 1 you will get 100। तो अब आप इसको इधर मल्टीप्लाई करो। 4 2 जा 8, 0 4 1 जा 4 4 8। अब क्योंकि आपने अपना आंसर डेसिमल में देना है तो आप डेसिमल में आंसर दोगे तो उस हिसाब से क्या है 100 को हटा के वहां क्या लगा दोगे? डेसिमल। अब 100 के पास 2 0 है तो यहाँ भी डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स आने चाहिए? 2। तो अब यहाँ से शुरू करो 1 and 2, तो आपका डेसिमल इस प्लेस पे आएगा 844.08। ये हो गया आपका आंसर। लेट अस डिस्कस वन मोर पार्ट। 2 into 2 को 2/1 लिख देते हैं, इसको 86/100 लिख दो। अब फिर फ्रैक्शंस होगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करो। 100 2 6 जा 12 172। अब आपने इस 100 को हटा के डेसिमल लगाना है तो ये आ गया आपका 1.72। अब ध्यान से देखो इधर हमारे पास क्वेश्चन क्या था? 2.1102 into 4। अगर आपने इनको फ्रैक्शंस में कन्वर्ट किया आपका आंसर क्या आया? 844.08। एक मेथड तो ये है कि आप पहले डेसिमल को ड्रॉप करके डिनोमिनेटर में ले जाओ, 100 10 1000 जो भी आता है, फिर न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करो, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, लास्ट में फिर आप आंसर अपना डेसिमल में दे दो। सेकंड मेथड क्या है? आप भूल जाओ यहाँ कोई डेसिमल है और डेसिमल को छोड़ के आप सिर्फ इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करो। अगर आप इनको मल्टीप्लाई करते हैं यू विल गेट 4 2 जा 8 0 4 4 8। अब आप यहाँ देखो कि जहां डेसिमल क्वेश्चन में था जितने डिजिट छोड़ के उतने डिजिट छोड़ के आंसर में लगा दो। तो यहाँ आपका 211.02 into 4, क्योंकि यहाँ 2 डिजिट्स हैं तो यहाँ भी 2 डिजिट्स से पहले डेसिमल आ जाएगा। आप अपना आंसर ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे, जैसे आप कंफर्टेबल हो करने में
आप वैसे कर लो। फिर एक बार ध्यान से देखो 7th क्लास, आपने डेसिमल की मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है, पहले डेसिमल हटा के डिनोमिनेटर को लिख दो, जितने भी रिक्वायर्ड डिजिट है उसके हिसाब से। अगर 1-2 डिजिट है तो 1 डिजिट है तो 1 0 आएगी, 1 के बाद 2 है तो 2 0 आएंगी। उसके बाद न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। जब आपका आंसर बन गया तो अब आप इस डिनोमिनेटर को इसके साथ सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, आप इसके जीरोस काउंट करके डेसिमल लगा देंगे। ऐसे ही हमने इस क्वेश्चन में किया। दूसरा मेथड मैंने क्या बताया, आप पहले भूल जाओ यहाँ कहीं डेसिमल है, आप इस नंबर को सीधा 4 से मल्टीप्लाई कर लो। अब देखो क्वेश्चन में, अब आप दोबारा अपना क्वेश्चन लिखेंगे, इनको मल्टीप्लाई करके ये आता है। अब आप अपना क्वेश्चन लिखेंगे, यहाँ डेसिमल लिखेंगे और आंसर में भी डेसिमल लिख देंगे। आपको इन दोनों में से जो मेथड इजी लगे उसी मेथड से सॉल्व कर लेना। Let us do second question of this exercise. Second question is, find the area of rectangle whose length is 5.7 centimeter and breadth is 3 centimeter. Length of rectangle is 5.7 centimeter. 5.7 centimeter and breadth of rectangle is equal to 3 centimeter. You are to find its area. आपसे पूछा गया इसका एरिया क्या है. You must be remembering the formula of area of rectangle. Area of rectangle is equal to length multiplied by breadth. Length is 5.7 centimeter and breadth is 3 centimeter. तो अब आपका ये नंबर क्या बन गया, 5.7 multiplied by 3 centimeter multiplied by centimeter, you get square centimeter. Square आपने पढ़ा हुआ है, अगर रेक्टेंगल का फॉर्मूला पढ़ा तो आपने ये भी पढ़ा होगा कि सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इज स्क्वायर सेंटीमीटर। फिर भी स्क्वायर को हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ आप पहुंच गए तो आपको क्या करना है, यू आर टू मल्टीप्लाई दीज डेसिमल नंबर्स। आप 57 को 3 से मल्टीप्लाई करो या इसे ऐसे करो, 57 इसका डेसिमल हटाओ, क्या आएगा, डिवाइडेड बाय 10 इंटू 3 बाय 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। 7 3 7 जा 21, ये आ गया आपके पास 171 बाई 10। अब इस 10 को डिनोमिनेटर से हटाना है, हमने अपना आंसर डेसिमल में देना है, क्योंकि इसके पास एक ही जीरो है तो पीछे से एक ही डिजिट छोड़ के आप डेसिमल लगाओगे। 17.1 स्क्वायर सेंटीमीटर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं स्क्वायर सेंटीमीटर, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर। ऊपर 2 कर दो। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 3. You are to multiply two numbers. One of them is decimal number and other is either 10, 100, 1000. देखो आप इसे कैसे करेंगे, अगर हम इसे ऐसे करते हैं, आप जैसे मैंने भी पहले समझाया था कि डेसिमल को ड्रॉप आउट कर दो। अगर आप इस डेसिमल को छोड़ोगे तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा, बिकॉज देयर आर 2 डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल, यू विल गेट 100 इंटू 10/1। अब आप इसे सिंप्लीफाई करो, 1 0 से 1 0 कैंसिल, यू आर लेफ्ट विद 8 0 8 मीन्स 8। 8 के आगे जो जीरो लगी है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, 8/10। अब इस 8/10 को अगर आप इस 10 को हटा के डेसिमल लिखना चाहते हो तो डेसिमल कहाँ आएगा आपका, 8 से पहले। आपका आंसर हो गया 0.8। एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं फिर आगे चलेंगे। 0.9 मीन्स 9/10 इंटू 100/1। अब आपकी ये जीरो इससे कैंसिल होगी और आपका आंसर क्या आ गया, 90। लेट अस डिस्कस वन मोर पार्ट, इट इज 12th पार्ट। 0.03 मल्टीप्लाइड बाय 1000। दिस कैन बी रिटन एज 03 डिवाइडेड बाय 2। डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं तो आपका ये आ गया 100 multiplied by 1000/1. 03 means 3 only upon 100 multiplied by 1000. आप इसकी 2 0 इससे कैंसिल कर दें, आंसर आ गया आपका 30।
इस तरह से तो आपने क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाने हैं। एक और मेथड है इसको टेस्ट करने का कि हमारा आंसर सही है या नहीं। देखो, जब आप इसे मल्टीप्लाई करते हैं 10 से, 10 में एक ही जीरो है, तो जो ये डेसिमल है वो 1 प्लेस आगे चला जाएगा। यहाँ अगर हम देखें, यहाँ डेसिमल 0 से पहले था, 1 प्लेस अहेड करेंगे, यहाँ से यहाँ पहुंचाएंगे डेसिमल को, तो आंसर में क्या आना चाहिए? 0.8, और यही हमारा आंसर है। आप इस आंसर को भी ऑरली चेक कर सकते हैं। जब आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डेसिमल 2 प्लेस आगे चला जाएगा। अब 0.9 में अभी तो आगे तो एक ही प्लेस है, एक प्लेस और बनाएंगे तो यहाँ 90 बन जाएगा। आपका डेसिमल 2 प्लेस आगे जाएगा राइट हैंड साइड में, 1 1, मतलब डेसिमल यहाँ आ जाएगा, तो आंसर क्या बनेगा? 90। 90 को आप 90.0 भी लिख सकते हैं। इस तरह से आप अपना आंसर चेक भी कर सकते हैं। 7th class, any problem regarding this question? If you have any problem, then you may raise your hand. Okay. 4th question, you will try yourself. Again, let us do some parts of question number 5. Question number 5. 1.07 into 0.02। आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे? पहले इसका डेसिमल हटाओ, 107 डिवाइडेड बाय 100। इसका डेसिमल भी हटाओ, 02 डिवाइडेड बाय 100। 02 मीन्स 2, 107 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करो। In numerator you will get 214 and in denominator you will get 10,000। अब आपको अपना ये आंसर डेसिमल्स की फॉर्म में लिखना है। Here 1 2 3 4 4 zeros, therefore you will place the decimal leaving 4 digits। लेकिन आपके पास तो 4 digits है ही नहीं, you have only 3 digits, you will apply 1 0 here। Now there are 4 digits, then mark decimal here। This is answer of your question. Let us discuss one more question with you. Another question is 2.5 first part into 0.3। 2.5 can be written as 25 by 10 and it can be written as 3 by 10। 25 into 3, it comes out to be 75 divided by 100। अब आपको डेसिमल लगाना है, 2 zeros हैं, 2 डिजिट छोड़ने हैं, तो आपका आंसर बन गया 0.75।